Good morning, all of you. Welcome to class of Electricity and Magnetism. In the previous lecture, we discussed electric field as negative gradient of electric potential. ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਂਡ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेफिनेटली सोर्स चार्ज के कारण ही है बिकॉज अगर कोई होर टेस्ट चार्ज है और असी उसनों एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक लैके जाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स चार्ज जिदे करके ऑलरेडी इलैक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो सानू कुछ वर्क करना पड़ेगा विच इज़ आर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल सो बिकॉज दोनों है चार्जेस दे कारण ही सोर्स चार्ज दे कारण so there must be some relation so relation as established karta in the last lecture that electric field is negative gradient of electric potential. So now let's move forward and now we will start with our electric multipoles. Okay, multi means many, so jinne bhi poles possible we will discuss. So first comes electric monopole. Now what is this mono? When we talk about single charge, now you know already that we have only two types of charges, either positive charge or negative charge. ठीक है एंड सानू ये भी पता है कि एक सिंगल चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है बिकॉज टिल नाउ वी हैव स्टडीड ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ origin ਤੇ source charge ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋ source charge positive ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ negative ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ at a time ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ charge ਇੱਕ single charge ਵੀ present ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ so when there is just single charge involved ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ electric monopole electric ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ because charge ਦੇ ਕਾਰਨ electric field generate ਹੁੰਦੀ ਹੈ but mono means one so ਇੱਕ pole ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ right. So a single electric point charge such as electron or positron in which all the electric field lines move inward for a net negative charge or away for a net positive charge is called electric monopole. So या तो तुहाडे कोल single positive charge present है जिस तो कि electric field lines बाहर move कर दी हैं you know कि electric field lines they always move out of the positive charge and they always move into the negative charge. So अगर कोई negative charge present है तो सारी दी सारी electric field lines ओदे अंदर enter करेंगे they will all move inside or inward they will move towards the negative charge और अगर कोई positive charge present है then what will happen electric field lines will move away from that positive charge. So अगर एक charge at a time present है so we call it monopole. Now then we have this dipole. So electric dipole means di means two so when you have both the charges available then we call them dipole. Okay, or we can also call it dipole when you have two charges present okay but especially what do we say here that when we have two charges which are equal in magnitude but opposite to each other and both are present then we term it as electric dipole. Okay, so di means two so when two charges are involved we call it electric dipole. So a system of two equal and opposite charges separated by a fixed distance is termed as electric dipole. So because ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ that two charges should be equal but opposite means ਉਹਨਾਂ ਦਾ magnitude ਬਿਲਕੁਲ same ਹੈ so ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ q ਨੇ but opposite ਹੈ a ਤੇ we have minus q and at b we have plus q. So अगर ये दोनों ज्वाइन हो जान फिर की होएगा एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे ठीक है ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर बिल्कुल ज्वाइन ही हो गए सो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर तो फिर तो साडे कोल कुछ भी नहीं बचेगा कोई चार्ज नहीं बचेगा अगर दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिता. सो अगर असी चाहते हैं टू हैव ए डाईपोल ठीक है और डाईपोल विच असी कह रहे हैं दैट चार्जेस शुड बी इक्वल बट ऑपोजिट तो उस केस विच दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ठीक है और कुछ डिस्टेंस से ही होने चाहिए अदरवाइज तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड वी विल नॉट हैव एनी चार्ज. सो जब we have two equal and opposite charges separated by a fixed distance
तद असी उसनों कहने आ इलैक्ट्रिक डायपोल। और यूजली जो डिस्टेंस है असी उसनों रिप्रेजेंट करते हैं 2a। ये सिर्फ एक नोटेशन है दैट असी डिस्टेंस नू x नहीं लेंदे या सिंपल a नहीं लिखते, वी राइट इट एज 2a। असी पहला ही एक सिंबल हो गया, ठीक है, कि दो चार्जेस है, सो उन्होंने विच द जो डिस्टेंस है इट इज रिगार्डेड एज 2a, दैट्स इट। ओके, सो जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टिंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, सो बेसिकली वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही होएगी ये जो लेंथ है इन्हों दे विच। ओके, then comes electric quadrupole. So quad means 4. So hun we have 4 charges present. So electric quadrupole is a system of 2 dipoles of equal magnitude but opposite sign. यानी दो dipoles ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ quadrupole बनता है। और दो dipoles यानी एक dipole विच कितने charges होंगे हैं 2। ओके, सो इफ वी हैव 2 डाइपोल्स तो कितने चार्जेस हो गए 4 चार्जेस इन्वॉल्व। ठीक है, सो दैट्स वाई जब 4 चार्जेस इन्वॉल्व ने सो वी कॉल इट इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल। सो मोनो स्टैंड्स फॉर 1, डाई स्टैंड्स फॉर 2 एंड क्वाड स्टैंड्स फॉर 4। ठीक है, सो असी 2 डाइपोल्स पिक कर लें और वो सिस्टम जिहदे विच 2 डाइपोल्स प्रेजेंट है वी कॉल इट क्वाड्रुपोल। Okay, so a quadrupole may be two-dimensional quadrupole or a linear quadrupole. उन्हें 4 चार्जेस किसी भी वे नाल अरेंज हो सकते हैं। ओके, सो एक लीनियर यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन ते भी सारे चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, या 2 डायमेंशन भी हो सकते हैं। 2 डायमेंशन यानी कि प्लेन ते भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हुण इत्थे लीनियर विच की है वी हैव जस्ट 1 लाइन और सारे चार्जेस एक लाइन ते ही ने। और इत्थे देखो वी हैव दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड -2q चार्ज इन बिटवीन। ठीक है, सो इट मीन्स कोई नंबर नहीं लिखा दैट मीन्स मैग्नीट्यूड 1 है। सो 1 2 एंड it 2 ऑलरेडी 2q लिखा हुआ है, इट मीन्स 2 चार्जेस होर ने। सो वी टोटल गेट ए टोटल ऑफ 4। सो ए बट एक लाइन ते ने सो वी कॉल दैम लीनियर क्वाड्रुपोल। ठीक है, और तुसी उन्हां दी पोजीशनिंग भी कर सकते हो दैट जो मिडल वन है यू कंसीडर दैम टू बी एट ओरिजिन। तो जिद्दां नंबर लाइन हुंदी है मैथ्स विच असी पढ़ते हैं। ठीक है, उस सेंटर विच 0 होंदा है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन विच पॉजिटिव नंबर्स होंदे हैं, लैफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन विच नैगेटिव नंबर्स होंदे हैं। ठीक है, 0 0 कद असी यूज करते हैं जब असी 2 कोऑर्डिनेट्स नू रिप्रेजेंट करना होए एक्स एंड वाई। ठीक है, बट जो एक हॉरिजोंटल लाइन होंदी है ये यूजली असी किस कोऑर्डिनेट नाल इसनू रिलेट करते हैं एक्स। ठीक है ना, हमेशा एक्स एक्सिस जिहड़ी है वो हॉरिजोंटल होंदी है और वाई एक्सिस वर्टिकल। सो बिकॉज एक सिर्फ हॉरिजोंटल लाइन है दैट मीन्स वी हैव जस्ट एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होंदा है वो फर्स्ट वन होंदा है। ठीक है, ऑलवेज असी कोऑर्डिनेट्स जब भी लिखते हैं अगर 2 डायमेंशनल है तो असी हमेशा लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, पहला एक्स का कोऑर्डिनेट दैन वाई। और अगर 3 डायमेंशनल होए then we write down x, y, z. So here because we have just x axis तो जो भी ओरिजिन दे राइट हैंड साइड पे होएगा वो प्लस होएगा। सो असी लिखता a एंड देन कॉमा 0 बिकॉज y कोऑर्डिनेट है ही नहीं। एंड सिमिलरली लैफ्ट हैंड साइड ते की हो गया बिकॉज लैफ्ट हैंड साइड ओरिजिन दी नैगेटिव एक्स एक्सिस होंदी है, इस करके इत्थे असी लिखता -a, 0 बिकॉज वी हैव नो y कोऑर्डिनेट। सो ये है लीनियर क्वाड्रुपोल। हुण अगर असी 2 डायमेंशनल क्वाड्रुपोल की गल करिए सो दैट मीन्स 4 चार्जिस ने जो वो प्लेन विच अरेंज होंगे। सो असी x एंड y ले लिया। ठीक है, और 2 चार्जिस किस तरह है वी हैव -q देन +q देन -q एंड देन +q एंड डेफिनेटली ये डाइपोल्स ने विच हैव बीन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, क्योंकि कंबाइन अगर कर देता सो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, फिर तक कोई भी चार्ज नहीं बचेगा। सो कंबाइन तो एक ऑप्शन है ही नहीं साडे कोल।
जो भी चार्जेस ने दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। सो अगर ये 2 डायमेंशनल या एक प्लेन विच अरेंज होंगे हैं वी कॉल दैम 2 डायमेंशनल क्वाड्रुपल, बट क्वाड स्टैंड्स फॉर 4। सो हुण इन्हां सारियां विचों सब तो ज़्यादा डिस्कस किया जाता है डाइपोल। ओके, when we have two equal and opposite charges separated by a fixed distance। सो हुण असी उसनूं डिस्कस करते हैं। सो इलैक्ट्रिक डाइपोल तो ही आ गया इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो व्हाट इज दिस इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitudes of the charge consisting the dipole and the vector length of the dipole। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बोलिए। ठीक है, और सिंपल इत्थे देखो वी हैव रिटन ओनली चार्ज, चार्जेस नहीं लिखिया। सो इत्थे तुसी ध्यान देना है, कुछ बुक्स विच मिसटेक होंदी है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ना कि मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, बिकॉज असी इत्थे सिंगल चार्ज ही लेना है, कंसीडर करना है, और उसका भी मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। बिकॉज यू नो कि डाइपोल विच वी हैव 2 इक्वल चार्जेस बट दे आर ऑपोजिट। इक्वल का मतलब की होंदा है दैट देयर मैग्नीट्यूड इज सेम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो असी सिर्फ एक टाइम ही मैग्नीट्यूड नू कंसीडर करांगे, 2 बार नहीं करांगे। ओके, सो ये की है, प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दा एंड वेक्टर लेंथ दा, यानी कि वो 2 डायपोल्स विच जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट, इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट एंड इन्हां दे मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। सो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है। सो दैट्स वाई यूजली मैग्नीट्यूड की है Q और डिस्टेंस असी डिनोट करते हैं बाय 2a। और बेसिकली वो डिस्टेंस भी नहीं, अगर तुसी कहना चाहे यू कैन कॉल इट डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ये वेक्टर लेंथ है। ठीक है, इट इज ए वेक्टर। सो डिस्टेंस का स्केलर होंदा है, सो यू कैन कॉल दिस एज डिस्प्लेसमेंट। सो Q डॉट 2a और जस्ट प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू 2a, दैट्स इट। ठीक है, Q की है स्केलर एंड 2a एक ही है वेक्टर। सो इन्हां दा जो रिजल्ट आएगा वेक्टर इंटू स्केलर इज वेक्टर। सो दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑल्सो वेक्टर। ठीक है, और यूनिट की आ गई, Q चार्ज है, चार्ज दी यूनिट कूलम, और 2a की है अल्टीमेटली तो एक लेंथ है और लेंथ दी यूनिट मीटर। सो यूनिट इज कूलम मीटर। हुण आ गया पॉइंट डाइपोल। हुण तुहानूं पता है कि पॉइंट की हुंदा है, जिद्दां हुण मैं एक पॉइंट लगा दिता, ये नैगलीजिबल डायमेंशन होंगे और ये स्पेस विच नैगलीजिबल स्पेस जो है या रीजन ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, पॉइंट वही है जो बहुत ही छोटा है, एक्सट्रीमली स्मॉल। सो हुण डायपोल विच तां साडी मेन रिक्वायरमेंट ये है दैट these we have 2 charges which are equal and opposite and they are separated by some distance। ठीक है, बिकॉज डिस्टेंस जेड़ा है अगर वो 0 हो जाएगा तो चार्जेस बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, फिर साडे कोल डायपोल नहीं रहेगा। सो हुण इस केस विच पॉइंट डायपोल दा की कॉन्सेप्ट है, सो लेट्स डिस्कस दैट। सो एज वी टॉक ऑफ अ पॉइंट चार्ज वी ऑल्सो टॉक ऑफ एन आइडियल डायपोल। So these are approximated by so-called atomic or molecular dipoles। So जिद्दां असी पॉइंट चार्ज यानी कि बहुत छोटा कोई बहुत पॉइंट चार्ज है उसके बारे गल करते हैं, उसी तरह असी पॉइंट डायपोल बारे भी गल करते हैं कि डायपोल है, वी हैव 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बट स्टिल पॉइंट डायपोल कह लो या उसनूं आइडियल डायपोल कह लो कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक आइडियल केस हमेशा ਹੁੰਦਾ है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ दैट जो सैपरेशन है वो बहुत स्मॉल होंदी जाती है। ठीक है, सो आइडियल डायपोल की होया जिथे सैपरेशन तो हो रही है बहुत स्मॉल, यानी कि योर ए इज अल्टीमेटली टेंडिंग टू 0। ठीक है, वाइल चार्ज मैग्नीट्यूड्स बिकम वेरी वेरी लार्ज, जो Q है वो इन्फिनिटी बनता जा रहा है। सो चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ता जा रहा है और उन्होंने विच जो डिस्टेंस है वो घटता जा रहा है।
ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਕੇਸ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ Q into 2A, it remains finite and constant. Because ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਫਾਈਨਾਈਟ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਡ ਟੂ ਮੈਜਰ ਔਰ ਟੂ ਗੈਟ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡੇਟਾ। सो अगर कुछ भी इनफाइनाइट हो रहा है, सो दैट इज आउट ऑफ आर कैपेबिलिटी, असी वो नहीं कर सकते। सो बट वी डील विद डाइपोल्स, वी डील विद चार्जेस। सो अल्टीमेटली द थिंग इज कभी भी कोई चीज़ इनफाइनाइट नहीं बननी चाहिए, बिकॉज द मोमेंट इट बिकम्स इनफाइनाइट वो साडे रेंज चो बाहर चली जाती है, देन वी कांट डील विद इट। सो अगर आइडियल डाइपोल की होएगा, आइडियल मीनस बिल्कुल आइडियल फिगर, जिदा अपना हर कोई किस कोई एक सैलेब्रिटी या कोई एक नोन पर्सनैलिटी सब दा आइडियल होंदी है। सो दे आर परफेक्ट इन सेंस, ठीक है, इन सम सेंस दे आर जस्ट परफेक्ट, दैट्स वाई वी कंसीडर देम आइडियल। सो आइडियल डाइपोल भी की होएगा, इट शुड बी परफेक्ट। सो इनफाइनाइट होना परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मीन्स समथिंग शुड बी फाइनाइट एंड कॉन्स्टेंट। कोई चीज़ जो वेरी ना करे, वेरी ये भी तुसी हर फिजिक्स विच जिदा चार्जिज हैं वट एवर वी डिस्कस, असी उसनों ह्यूमनस नाल अपनी लाइफ नाल रिलेट कर सकते हैं। यूजली इफ यू हैव टू परसनस, एक दा बिहेवियर हर वक्त चेंज होंदा रहिंदा है, असी उसनों वेरिंग परसनैलिटी कवांगे या उहदा बिहेवियर हर टाइम फ्लक्चुएट हो रहा है। और एक परसन है जो हर टाइम सेम रहिंदा है, ठीक है, उसनों असी कहने स्टेबल परसनैलिटी। दोनों विचों केड़ा बैटर है? ऑब्वियसली स्टेबल परसनैलिटी वाला परसन बैटर है, ठीक है। जेड़ा हर टाइम वेरी होंदा रहे उसनों असी नहीं पसंद करते। सो उसी तरह चार्जिस विच आइडियल जो चार्ज है, या हुण डाइपोल के केस विच आइडियल डाइपोल कौन होएगा? जो कि फाइनाइट एंड कॉन्स्टेंट होए, फाइनाइट भी होवे ते कॉन्स्टेंट भी रहे, चेंज ना होए उहदी वैल्यू। सो कद हो सकती है कि अगर वी हैव टू थिंग्स जो कि डाइपोल मोमेंट दसते हैं, वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड अनदर इज डिस्टेंस। सो हुण इन्हां नूं ही ये सारा रोल प्ले करना पएगा। इट्स देयर ड्यूटी टू मेनटेन दिस डाइपोल मोमेंट फाइनाइट एंड कॉन्स्टेंट। हुण ये किद्दां करनगे? सो आइडियल दा मतलब, और व्हेन वी से पॉइंट डाइपोल, तो पॉइंट मतलब डायमेंशन बहुत कम होने, ठीक है। सो डायमेंशन कम होने का मतलब की है कि जो तुहाडे चार्जिस दे विच डिस्टेंस है, जो भी उन्हां दे विच लेंथ है, वो डिक्रीज होनी चाहिए, तभी वो पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। बट अगर वो डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी तो वो फिर तुहाडे डाइपोल मोमेंट नूं इफेक्ट करेगी। वी डोंट वांट दैट। सो फिर की करना पएगा? असी चाहते हैं कि साडा जो डाइपोल मोमेंट P है वो कॉन्स्टेंट रहे। कॉन्स्टेंट कद रहेगी? अगर एक क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो रही है तो दूजी नू बहुत लार्ज होना पड़ेगा, तब जाके दोनों एक दूजे नू बैलेंस करेंगे। सो पॉइंट डाइपोल वी से कि जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है, इट हैज़ टू बिकम वेरी वेरी स्मॉल। बट अगर ऐदा हो रहा है तो फिर जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का उसनू बनना पड़ेगा वेरी वेरी लार्ज, सो दैट जो प्रोडक्ट है दैट स्टेज कॉन्स्टेंट एंड फाइनाइट। अगर ऐदा होंदा है then we call that dipole an ideal dipole, ठीक है। So for such ideal dipole the assumption of A being very small is valid. For other not so ideal dipole the assumption of A being very small is valid when we are talking about the far field of a dipole, फार फील्ड ऑफ ए डाइपोल। सो अगर तो कोई आइडियल है तद असी समझ सकते हैं कि ओके इफ इट इज़ आइडियल तो इट मीनस इट विल स्टे कॉन्स्टेंट। सो अगर वह जो स्पेस जो जो सैपरेशन है ए, अगर वो बहुत कम भी है ईवन दैन इट्स फाइन। सानू पता है कि इफ सैपरेशन इज डिक्रीजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल इंक्रीज टू कीप द प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट। बट अगर बाकी डाइपोल्स की गल करिए जो कि नॉट इन्ने आइडियल नहीं ने, फॉर नॉट सो आइडियल डाइपोल्स, उस केस विच
जो ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ that A is becoming very small, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਤਦ ਹੈ when we are talking about far field of a dipole. सो ए फार फील्ड जो है ਇਹਦਾ मतलब कि स्टिल जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है दैन द वेव लेंथ, ठीक है, या ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो फील्ड है. सो फार फील्ड का मतलब स्टिल वी आर टॉकिंग ऑफ मच लार्जर डिस्टेंसेस. सो ਉਹੀ ਗੱਲ बनी कि अगर डिस्टेंस बहुत लार्ज होएगा सो उस केस ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ A being very small ਦੀ assumption ਨੂੰ वैलिड कह सकते हैं कि स्टिल उस लार्ज डिस्टेंस भी स्मॉल है, ओनली दैट केस. बट वही गल है कि अल्टीमेटली जो A being very small ਦੀ assumption वैलिड सिर्फ आइडियल डाइपोल ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. नॉट सो आइडियल डाइपोल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ नहीं कर सकते कि A बहुत ही स्मॉल हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है. सो पॉइंट डाइपोल, पॉइंट का मतलब डाइपोल बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है. सो इट मीनस सैपरेशन इज डिक्रीजिंग. बट अगर किसी को आइडियल बनना है तो इट मीनस ਉਹਦੀ पर्सनैलिटी किदां दी होनी चाहिए है, ऑलवेज कॉन्सटेंट, फाइनाइट. सो अगर सानू आंसर फाइनाइट चाहिए है और आंसर किसदा मिल रहा है, दो चीज़ों के प्रोडक्ट नाल. सो अगर एक चीज़ बहुत डिक्रीज हो रही है तो दूजी चीज़ नू बहुत इनक्रीज होना पएगा सो दैट कि तुहाडा जो आंसर है, जो प्रोडक्ट है, वो हमेशा फिक्स रहे, कॉन्स्टेंट रहे. ओके, सो दिस इज द रोल विच एन आइडियल डाइपोल शुड प्ले. Okay, so now let's discuss the electric potential due to a short dipole. यानी कि it's not ideal, it is not point dipole, it is a short dipole कि बहुत ज़्यादा distance नहीं है दो charges दे विच, it's a short one. So here we are considering 2 point charges plus q and minus q and they are separated by distance 2a. So a 2a notation ही ऐसे use करते हैं whenever we want to notify the distance between two charges. So now O is the midpoint. So first of all, let's have a look at the figure. So you can see here we have these two charges, minus q and plus q. Okay, so this is the line of separation between them. और जो O है midpoint. Okay, what next? Then we have this point P. So P be the point where we have to find electric dipole moment. So obviously हम असी जिथे find करनी है कोई भी value उस point नू असी हमेशा P नाल denote कर दिन्ने हैं. So here because हुन असी dipole moment दे बारे गल कर रहे हैं, so obviously point P ते we have to find electric dipole moment and distance definitely matters. तो हुन असी कह रहे हैं कि जो point P है वो जो तुहाडा mid point है O उन्हां विच distance है r. Okay, fine. So we have got this distance r. So हुन logic ही कहंदा है कि ठीक है, we have two charges, उन्हां दे विच असी mid point भी ले लिया और एक point P भी ले लिया जिथे we want to find. But ultimately P ते जो भी dipole moment आएगी वो किस करके आएगी, mid point करके या ये दो charges करके. Obviously because of these two charges, यही तो वो दो charges ने which are forming a dipole. Okay, so it means इन्हां दा effect देखना at P. So the best thing would be कि पहला असी Q और P नू join कर लिए and इधरों R and P नू join कर लिए. And we are saying that this distance QP is R1 and this distance RP is R2. Okay, so we have assumed these two distances. So ਹੁਣ potential at P due to plus Q charge. Obviously dipole है, so we have one plus Q charge and another one is minus Q. So at P the potential due to plus Q would be जो सादा normal formula है और हमारा normal formula क्या है potential के लिए, Q upon 4 pi epsilon naught R. और यहाँ पर Q क्या है, plus Q है, 4 pi epsilon naught as it is रहेगा और R क्या होता है, distance between the point and the charge और वो distance क्या है, R2. ठीक है, you can see plus Q charge और P के बीच में distance है R2. So due to positive Q charge साढ़े कोल potential आ गया plus Q upon 4 pi epsilon naught R2
एंड ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज पोटेंशियल आ गया माइनस क्यू अपॉन 4πε0r1. सो टोटल की बन गया, वी हैव टू ऐड देम बिकॉज वन इज हैविंग नेगेटिव साइन, सो साढ़े को नेगेटिव साइन इन बिटवीन आ गया. ओके, सो यहां तक बिल्कुल सिंपल. नाउ वी हैव टू डू सम चेंजेस, और वो चेंजेस क्या हैं? द फर्स्ट थिंग इज हमें क्यू एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू पी ओ प्रोड्यूस टू एन. ठीक है, यानी कि अब हमारे पास अभी कोई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम, आप देख रहे हो वी आर गेटिंग अ ट्रायंगुलर फिगर, बट ट्रायंगल को भी हम तभी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें मिले राइट एंगल ट्रायंगल. और यहां पर तो आप देखो अभी तक जो हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ की है, ये जो एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स बने हैं, इनमें से कोई भी राइट एंगल तो नहीं है. जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा हम वो अपने जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा अगर ये सब हमने यूज करना है, अगर हमने इसको एक्चुअली सॉल्व करना है, सो वी नीड टू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो अगर नहीं है तो फिर हमें बनाना पड़ेगा. एंड हाउ विल वी मेक? मेन जो P वाली लाइन है, पॉइंट P वाली लाइन जो कि मिड पॉइंट O को ज्वाइन कर रही है, पहले तो उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, बिकॉज जो भी हमने ड्रॉ करना है वो उसी लाइन पे होना चाहिए जिस पे कि हमारा पॉइंट P प्रेजेंट है. और पॉइंट P किस लाइन पे मेजर प्रेजेंट है? ये जो मिड पॉइंट से होती हुई जा रही है. ठीक है, सो ये आगे हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, ये है आपकी मेन लाइन. तो ये जो दो चार्जेस हैं, इनसे हमने अगर कुछ भी ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, तो वो हमेशा इस लाइन पे ही बनना चाहिए. तो अब हमने बनाना है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बिकॉज वी वांट राइट एंगल ट्राइंगल्स. सो क्यू के लिए क्या पॉसिबल है? आप देख लो कहीं भी, क्यू को से आप ऐसे ही बना सकते हो तभी आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा, और आर से आप ऐसे बना सकते हो तब आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा. ठीक है, सो ये क्यू एन ओ एंड आर एम ओ, ये आपके दो ट्राइंगल्स हो गए विच आर राइट एंगल ट्राइंगल्स. तो अब राइट एंगल ट्राइंगल है, नाउ वी कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो पहले हमने लिया ट्राइंगल ओ क्यू एन जिसमें कि कॉस थीटा विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस क्या है? एंगल ओ पर है. ठीक है, हम हमेशा जब भी बेस देखते हैं तो वो बेस होता है सिंपल एंगल और 90 डिग्री, ये दो एंगल्स के बीच वाली इनकी जो कॉमन साइड होती है वो बेस होती है. ठीक है, तो यहां पर बेस क्या बना? ओ एन, और हाइपोटेन्यूज क्या बना? ओ क्यू. सो ओ एन अपॉन ओ क्यू, सो ओ एन क्या बन गया? ओ क्यू कॉस थीटा. एंड व्हाट इज ओ क्यू? ओ क्यू, हमेशा हम डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं? 2a. और बिकॉज ओ आपका मिड पॉइंट है तो दैट मीन्स ओ क्यू और ओ आर क्या होंगे? a. सो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू a. सो हमने जो अभी फाइंड किया है ओ एन की वैल्यू हमने निकाल ली है विच इज a cos थीटा. सिमिलरली नाउ वी विल टेक आर ट्राइंगल ओ आर एम, और इसमें भी हम बेस लेंगे. अब बेस क्या बनेगा? बेस इज दैट कॉमन साइड और दैट साइड विच इज कॉमन टू बोथ द एंगल एंड द 90 डिग्री. तो बेस हो गया आपका ओ एम अपॉन, और फिर 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. सो ओ आर इज द हाइपोटेन्यूज, और ओ आर आपका क्या है? ए. सो ओ एम हो गया ए कॉस थीटा. अब अगर हमने आर पी फाइंड करना है विच इज योर आर टू, ठीक है, सो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, सी हमने यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं डाला, ये करली एक होता है ये इक्वल टू जिसका मतलब है येस इट इज डेफिनेटली इक्वल टू दिस थिंग, और एक होता है ये जिसमें हम अप्रोक्सीमेटली, ये होता है इक्वल टू. ठीक है, और ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, यानी कि टोटली इक्वल नहीं है बट फिर भी वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू बी. सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू.
तो हम इस आर पी को लिख सकते हैं पी ओ माइनस ओ एम, यानी कि जो ये आर पी है ये पी ओ माइनस ओ एम यानी कि इतने के इक्वल हो सकती है। सो वी आर जस्ट सेइंग, हमने कहा है कि ये जो भी एंगल है या जो भी डिस्टेंस है ये बहुत स्मॉल है, सो इट रियली डजंट मैटर। तभी हमने इक्वल टू का साइन नहीं डाला, हमने अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का साइन डाला है। तो हम लिख सकते हैं इसको आर पी को, बिकॉज क्यू पी और आर पी में से आपको कौन सी शॉर्टर लग रही है? आर पी, ठीक है। ऑब्वियसली जो क्यू पी है वो ग्रेटर देन है आर पी, बट दोनों जो हैं वो उनका रिलेशन हमने इस मिड पॉइंट से निकालना है। ये जो मिड वाली जो आपकी ओ पी लाइन है इसके साथ हमने रिलेशन बताना है इन दोनों साइड्स का। R2 का R के साथ रिलेशन बताना है एंड R1 का R के साथ रिलेशन बताना है। सो वो रिलेशन कैसे बताएंगे? अब हम कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, तो हमने कहा कि विच इज ये जो RP है इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज PO माइनस OM, यानी इतना सा सेक्शन निकाल भी दो तो भी ये दोनों साइड्स दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। और PO क्या है? R, और OM अभी हमने फाइंड किया दैट इज A cos थीटा। सिमिलरली जो PQ है बिकॉज इट इज ग्रेटर, तो इसके लिए हम लिख रहे हैं कि ये जो PQ है दैट इज बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू PO प्लस ON, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्गर है। तो आप देखो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, तो इसलिए हम इस पी क्यू को लिख सकते हैं पी ओ प्लस ओ एन। तो पी ओ आपका आर है और ओ एन था ए कॉस थीटा, तो एक आ गया हमारे पास आर माइनस ए कॉस थीटा और एक आ गया आर प्लस ए कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली हमने क्या फाइंड किया है? R2 एंड R1 की वैल्यू। सो अवर R2 इज नाउ R माइनस ए कॉस थीटा एंड R1 इज R प्लस ए कॉस थीटा। सो ये सब हमने क्यों किया? बिकॉज अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, उसमें हमारे पास R2 और R1 आ रहे थे, ठीक है। एंड R1 अलग डिस्टेंस है, एक चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस है, R2 दूसरे चार्ज का पॉइंट P से डिस्टेंस है। बट अल्टीमेटली जब आंसर दिखाना होता है तो हमें कॉमन डिस्टेंस चाहिए होता है, कुछ कॉमन टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये R2 और R1 का R में कन्वर्ट होना जरूरी था। उनमें कन्वर्ट करो जिसमें कि जो कि कॉमन हो, तभी हमने R और A में कन्वर्ट किया, क्योंकि दोनों के लिए R भी आ रहा है और A भी आ रहा है, थीटा भी सेम ही है, ठीक है। सो अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हो गया 1 अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा एंड माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा। नाउ you can take the LCM. So numerator which what we will get? R and R will get cancelled and we will have a cos theta minus of minus a cos theta. So that will give us 2a cos theta. और ये नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन गया? This is a minus b, a plus b. And what do we get for this? A minus b and a plus b, the product of these two gives us a square minus b square. So that's why we have written here r square minus a square cos square theta. Okay, so ultimately we get 2aq cos theta upon 4 pi epsilon naught and r square minus a square cos square theta. Now here ये जो 2aq है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, जिसको कि हम एक्चुअली डिनोट करते हैं P से, डाइपोल मोमेंट। सो यहाँ पर जब 2aq आएगा वी कैन राइट डाउन P हियर। सो वी गेट V एज P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गया। ये आपका एक तरह से
आंसर आ गया। अब हम कुछ केसेस या कुछ एक्स्ट्रा सिचुएशंस कंसीडर करेंगे कि इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल की लेंथ बहुत स्मॉल है, उस केस में यूजुअली जब भी हम ऐसा कुछ कंसीडर करते हैं दैट समथिंग इज वेरी स्मॉल या इफ दिस इज स्मॉल, तो जो दो कोई क्वांटिटीज होती है ना, उनमें से एक हमेशा इग्नोर हो जाती है। अब आप इसमें देखोगे कि एक आर है और एक ए है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर डाइपोल की लेंथ बहुत स्मॉल है, यानी कि अगर ए जो है या 2a बहुत स्मॉल है, तो ऑब्वियसली ये जो आर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप इस a को यानी q और r इन इस डिस्टेंस को कम करते जाओगे, अभी तो कंपेरेबल लग रहा है, अभी तो जितना QR है उतना ही OP लग रहा है। बट वट इफ यू कीप ऑन डिक्रीजिंग दिस डिस्टेंस QR, तो उस केस में क्या होगा, ये जो OP डिस्टेंस है वो मच लार्जर बन जाएगा। और जब कोई एक चीज बहुत कम हो जाए और उसके कंपैरेटिव दूसरी टर्म बहुत बड़ी बन जाए, तो जो स्मॉलर टर्म होती है हम उसको हमेशा डिस्कार्ड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वी डोंट वांट इट एनी मोर। जो इतनी स्मॉल हो गई कि हमारे आंसर को इफेक्ट ही ना करे, तो उसका कोई यूज नहीं रह जाता। सो इफ दिस हैपेंस देन योर आर बिकम्स वेरी मच ग्रेटर देन ए, so in that case we can ignore this a square cos square theta, we don't need it anymore। तो फिर क्या बचेगा, p cos theta अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये भी अब आपका एक आंसर आ गया। तो ये सारे बेसिकली आपके आंसर्स हैं, ठीक है। ये एक आपका आंसर आ गया। अगर आप ये कंसीडर कर लो दैट लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, तब आप ये आंसर निकालोगे। फिर इसको आप फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हो। हाउ, इसको r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, तो ऊपर आ गया पी आर कॉस थीटा, नीचे बन गया आर क्यूब। और ये जो टर्म है कि दो मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सो कभी भी ऐसे टर्म आए कि आपके पास दो मैग्नीट्यूड्स हैं और कॉस थीटा है, यू कैन इजिली एंड सिंपली कन्वर्ट इट इनटू दैट डॉट प्रोडक्ट। सो ये एक आपका फाइनल फॉर्म बन गई, इट लुक्स मोर इम्प्रेसिव, ठीक है, दैट p डॉट r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। फर्दर we have this formula. This is very important formula which you will use in the entire chapter. So आपके पूरे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लिए एक तो आपको E इज इक्वल टू माइनस डेल V पता होना चाहिए, और एक ये है सेकेंड फॉर्मूला दैट अगर आप डेल निकाल रहे हो 1 बाय आर का, सो दैट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन आर क्यूब। ये हमने सॉल्व भी किया है, तो अब आपको ये याद रखना है, ओके। You have to remember this. So अब r upon r cube के लिए we can write down minus del of 1 by r. So यहाँ पर r upon r cube कहाँ आया है, here. So instead of this r upon r cube we can write down del of 1 by r with a minus sign. So this is even more impressive and standardized expression. So this is the equation of electric potential due to short dipole. Now let's discuss the special cases. So special cases is when observation point lies on axial line or end on line. Here we consider that A जो आपके दो dipoles थी, point P was at some distance away. बट वट इफ अगर ए पॉइंट P इस लाइन पे ही आ जाए, दो डाइपोल्स दे विच आ जाए या इसी पर्टिकुलर एक्सियल लाइन पे किते भी आ जाए, देन व्हाट विल हैपन, ओके। हो सकता है, सी वी कैन नॉट इग्नोर एनी अकरेंस, कुछ भी पॉसिबल है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि जो डायरेक्शन है P एंड R दी वो सेम हो जाएगी और थीटा हो जाएगा 0 और cos 0 डिग्री की हुंदा है 1, सो देन दैट मीन्स योर cos थीटा विल बी 1। सो हुण असी पिक कर रहे हैं फॉर्मूला
पोटेंशियल दा ए वाला पी आर कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, बिकॉज सानू पता चल गया दैट कॉस थीटा इज 1। ठीक है, सो असी वो सबस्टिट्यूट कर देंगे, कॉस थीटा इज 1। ओके, एंड देन की होएगा, आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा एक r null in the denominator, and we will have p upon 4 pi epsilon naught r square. Now p is also a magnitude, so it is a constant value. 4 pi epsilon naught is also a constant value, but r, what is this r? R is the distance of the point p from the dipole. ठीक है, सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। a ਕੀ ਹੈ, हाफ डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल्स, लेकिन आर की है जिस पॉइंट ते तुसी डायपोल मोमेंट फाइंड करनी है उस दा डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल। सो हुण द सिचुएशन इज कि अगर ये तुहाडे कोल माइनस क्यू है एंड इत्थे प्लस क्यू है, सो पी या तो इत्थे भी हो सकता है या फिर इसी लाइन ते किते होर भी हो सकता है। सो दैट्स वाई जो थीटा है वो 0 डिग्री है, बिकॉज कोई एंगल बन ही नहीं रहा, इट्स 0 डिग्री एंगल। ओके, सो आर जो है वो वेरी करेगा, सो दैट मीन्स जो आंसर है दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन आर, यानी कि पोटेंशियल इज वेरिंग इनवर्सली विद आर स्क्वायर। जिदा जिदा तुहाडा डिस्टेंस इंक्रीज होएगा इलैक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वर्क डन टू मूव ए चार्ज from one point to another. So अगर डायपोल तो पॉइंट पी बहुत ही दूर है तो फिर डायपोल का उन्ना इफेक्ट पॉइंट पी ते नहीं आएगा। तो अगर पॉइंट पी ते कोई चार्ज है और असी उसनू मूव करना, असी ईजिली मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायपोल तो बहुत दूर है, डिस्टेंस इज मच मोर, और डायपोल उन्ना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो डिस्टेंस मैटर्स। नेक्स्ट इज when observation point lies on equatorial line or broadside on line, यानी कि हुन somewhere in between है। इत्थे पॉइंट पी किसी एंगल ते सी, लेकिन हुन असी की कह रहे हैं, ए है माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, एंड पॉइंट पी बिल्कुल परपेंडिकुलर ते है। ठीक है, सो हुन की बनेगा, सो पहली गल जो कॉस थीटा है वो हो गया 90 डिग्री, एंड यू नो कॉस 90 डिग्री इज 0। सो हेयर इट इज सिर्फ इक्वल टू पूरा कंप्लीटली नहीं लिखा हुआ सी। सो उस केस विच की होएगा, पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ये साडा फॉर्मूला है। पी आर कॉस थीटा, हुन थीटा है 90 डिग्री, सो कॉस 90 मीन्स 0, इट मीन्स पोटेंशियल 0। यानी कि अगर तुहाडा पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन ते है, इस तरह 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो तुहाडा पोटेंशियल 0 है। इट मीन्स तुसी बड़ी ईजिली चार्ज नू मूव कर सकते हो, तुहानू कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा फोर्स, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं देना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लाना पड़ेगा टू मूव द चार्ज। देन कम्स इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए डायपोल, डेरिवेशन फ्रॉम इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। सो सारे हुन तुसी देखो सेम ही है, बस असी अलग अलग फॉर्मूले यूज करके इसनू डिराइव करांगे। सो ए हो गया साडा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो असी हुणे डिराइव कीता है। फर्दर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का की फॉर्मूला है, E इक्वल टू माइनस डेल वी। ठीक है, ये भी असी डिराइव कीता सी। इलैक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। सो माइनस डेल और वी की जगह तुसी लिख दो वी। हुन की होएगा, कॉमन टर्म्स आउटसाइड, सो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, और डेल हो जाएगा पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब। हुन ये एक फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, अगेन ये तुहानू याद रखना पड़ेगा। जिदा तुसी याद किया है डेल ऑफ 1 बाय आर, वो की है माइनस आर अपॉन आर क्यूब। सिमिलरली डेल ऑफ पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब का ये पूरा फॉर्मूला है। सो आई विल गिव यू द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डेरिवेशन ऑल्सो, कि ग्रेडियंट अगर असी इस तरह के ऑब्जेक्ट का निकालीए तो ये आंसर किद्दां आंदा है। बट तुहानू तुहाडे इस पेपर लिए इसनू एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। ओके, सो एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। सो हुन तुसी एदी जगह ते ये वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दोगे, एंड वी गेट E इज इक्वल टू माइनस
और बिकॉज माइनस साइन है विच एंड ऑलरेडी वी हैव अ नेगेटिव साइन कॉमन, तो एक बार आ गया माइनस पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब एंड प्लस दिस होल टर्म. So that's all for today. Thank you.